اگر آپ میرے ساتھ وہاں جائیں گی تو ہو سکتا ہے کہ میری فیس بھی تھوڑی بہت کم کر دیں۔ جب عذرا اس کے ساتھ وہاں پر جاتی ہے تو اسے وہاں جا کر پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر جو بچے یتیم ہوتے ہیں انہیں ریلیف دیا جاتا ہے اور انہیں 50% فیس پر وہاں پر ایڈمیشن مل جاتا ہے۔ جب یہ بات سائرہ کی بیٹی سنتی ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ عذرا اسے کہتی ہے کہ چلو 50% فیس تو تمہاری میں دے دوں گی، تم ایک کام کرنا، اپنے سارے پیپرز ریڈی کروا لینا، میں تمہارے ساتھ چلوں گی اور پھر ہم تمہارا ایڈمیشن کروا لیں گے۔ یہ بات سن کر سائرہ کی بیٹی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ وہ ان سے کہتی ہے کہ آپ بہت اچھی ہیں، امی ایسے ہی آپ کے بارے میں الٹا سیدھا بولتی رہتی ہیں۔ عذرا اسے کہتی ہے کہ تمہاری ماں کو تو ویسی گندی عادت ہے ہمیشہ دوسروں کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنے کی۔ وہیں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ سمن کے بابا بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں سمن کی وجہ سے۔ وہ سوچتے ہیں کہ بس وہ کسی طرح سے جلد اپنی بیٹی کا فرض ادا کر دیں۔ وہ سمن کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ وہ اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں تم دونوں کا حصہ تم لوگوں کو دے دوں، جس پر ان کی بیوی ان سے کہتی ہے کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہمیں کوئی حصہ نہیں چاہیے اور آپ جب تک ہمارے ساتھ ہیں ہمارے لیے بس آپ کا ساتھ کافی ہے۔ جس پر سمن کا باپ سے کہتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، بس میں ویسے ہی چاہتا ہوں، مجھے اصل میں فرد کے ماں باپ کا حادثہ دیکھ کر بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے، اس لیے میں سوچ رہا تھا کہ ہم جلدی سمن کی شادی بھی کر دیں، اس کے فرض سے بھی آزاد ہو جائیں، اور پھر میں چاہتا تھا کہ میں اپنی زندگی میں اپنا حق تم دونوں کو دے دوں تاکہ میرے سر سے سارا بوجھ اتر جائے اور میرے بعد تم دونوں کو کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جس پر ان کی بیوی انہیں سمجھاتی ہے کہ جو کچھ فرد کے ماں باپ کے ساتھ ہوا ہے ایسا ہر کسی کے ساتھ نہیں ہوتا، ان دونوں کی قسمت میں ایسے ہی موت لکھی تھی، اس لیے ان کے ساتھ وہ حادثہ ہو گیا۔ ہمیں تو فرد کے لیے بھی بہت افسوس ہوتا ہے کہ وہ بچی اب کیسے جیے گی، اس کے دونوں ماں باپ ایک ساتھ اسے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ میں سمجھ سکتی ہوں اس بات کا دکھ، اور مجھے پتا ہے کہ آپ کو بھی اس بات کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے کہ آخر آپ یہ سب کچھ کیسے کریں گے، لیکن آپ فکر نہ کریں، عذرا ایسی بالکل بھی نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمارا ساتھ دے گی اور وہ ہمارے معاملات کو بہت اچھے سے سمجھتی ہے، اور وہ بہت اچھے سے سمجھتی ہے کہ ہم اس کا کتنا خیال رکھتے ہیں، اور وہ ہماری بیٹی کا بھی بہت خیال رکھے گی، آپ اس چیز سے بالکل بے فکر ہو جائیں۔ وہ اس کا شوہر ان سے کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ عذرا بھابی بہت اچھی ہیں، وہ ہمارا بہت خیال رکھیں گی اور ہماری بیٹی کا بھی بہت خیال رکھیں گی، لیکن ہمارا بھی تو کوئی حق بنتا ہے نا اپنی بیٹی پر۔ اس لیے میں سوچ رہا تھا کہ میں جمال سے بات کروں کہ جیسے ہی سمن کے پیپرز ختم ہو ہم ساتھ ہی ان دونوں کی شادی کی ڈیٹ فکس کر کے اور سمن کو جلدی ہی رخصت کر دیں۔ پھر آگے وہاں ثانیہ کی بیٹی کی خواہش تھی کہ وہ بہت اچھے اسکول میں ایڈمیشن لے لیکن وہاں پر ایڈمیشن لینے کے لیے فیس کی ضرورت تھی، لیکن جب وہ عذرا سے کہتی ہے تو عذرا سے کہتی ہے کہ تم فکر مت کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں جہاں ایڈمیشن لینا تو مجھے بتانا، میں تمہارا ایڈمیشن کروا دوں گی۔ بھلے سے تمہاری ماں اچھی عورت نہیں ہے، اس نے کبھی میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، لیکن میں تمہاری پوری مدد کروں گی، تمہیں جب میری مدد کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا۔ جس پر سائرہ کی بیٹی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور وہ ان سے کہتی ہے کہ مجھے ایک اسکول میں ایڈمیشن لینا ہے، لیکن وہاں کی فیس بہت زیادہ ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ وہاں پر چلیں، امی نے وہاں جانے سے صاف انکار کر دیا، اگر آپ میرے ساتھ وہاں جائیں گی تو ہو سکتا ہے کہ میری فیس بھی تھوڑی بہت کم کر دیں۔ جب عذرا اس کے ساتھ وہاں پر جاتی ہے تو اسے وہاں جا کر پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر جو بچے یتیم ہوتے ہیں انہیں ریلیف دیا جاتا ہے اور انہیں 50% فیس پر وہاں پر ایڈمیشن مل جاتا ہے۔ جب یہ بات سائرہ کی بیٹی سنتی ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ عذرا اسے کہتی ہے کہ چلو 50% فیس تو تمہاری میں دے دوں گی، تم ایک کام کرنا، اپنے سارے پیپرز ریڈی کروا لینا، میں تمہارے ساتھ چلوں گی اور پھر ہم تمہارا ایڈمیشن کروا لیں گے۔ یہ بات سن کر سائرہ کی بیٹی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ وہ ان سے کہتی ہے کہ آپ بہت اچھی ہیں، امی ایسے ہی آپ کے بارے میں الٹا سیدھا بولتی رہتی ہیں۔ عذرا اسے کہتی ہے کہ تمہاری ماں کو تو ویسی گندی عادت ہے ہمیشہ دوسروں کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنے کی۔ وہیں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ سمن کے بابا بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں سمن کی وجہ سے۔ وہ سوچتے ہیں کہ بس وہ کسی طرح سے جلد اپنی بیٹی کا فرض ادا کر دیں۔ وہ سمن کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ وہ اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں تم دونوں کا حصہ تم لوگوں کو دے دوں، جس پر ان کی بیوی ان سے کہتی ہے کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہمیں کوئی حصہ نہیں چاہیے اور آپ جب تک ہمارے ساتھ ہیں ہمارے لیے بس آپ کا ساتھ کافی ہے۔ جس پر سمن کا باپ سے کہتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، بس میں ویسے ہی چاہتا ہوں، مجھے اصل میں فرد کے ماں باپ کا حادثہ دیکھ کر بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے، اس لیے میں سوچ رہا تھا کہ ہم جلدی سمن کی شادی بھی کر دیں، اس کے فرض سے بھی آزاد ہو جائیں، اور پھر میں چاہتا تھا کہ میں اپنی زندگی میں اپنا حق تم دونوں کو دے دوں تاکہ میرے سر سے سارا بوجھ اتر جائے اور میرے بعد تم دونوں کو کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جس پر ان کی بیوی انہیں سمجھاتی ہے کہ جو کچھ فرد کے ماں باپ کے ساتھ ہوا ہے ایسا ہر کسی کے ساتھ نہیں ہوتا، ان دونوں کی قسمت میں ایسے ہی موت لکھی تھی، اس لیے ان کے ساتھ وہ حادثہ ہو گیا۔ ہمیں تو فرد کے لیے بھی بہت افسوس ہوتا ہے کہ وہ بچی اب کیسے جیے گی، اس کے دونوں ماں باپ ایک ساتھ اسے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ میں سمجھ سکتی ہوں اس بات کا دکھ، اور مجھے پتا ہے کہ آپ کو بھی اس بات کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے کہ آخر آپ یہ سب کچھ کیسے کریں گے، لیکن آپ فکر نہ کریں، عذرا ایسی بالکل بھی نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمارا
साथ देगी और वो हमारे मामलात को बहुत अच्छे से समझती है और वो बहुत अच्छे से समझती है कि हम उसका कितना ख्याल रखते हैं और वो हमारी बेटी का भी बहुत ख्याल रखेगी। आप इस चीज़ से बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाएँ। वो उसका शौहर उनसे कहता है कि मुझे पता है कि अज़रा भाभी बहुत अच्छी हैं, वो हमारा बहुत ख्याल रखेंगी और हमारी बेटी का भी बहुत ख्याल रखेंगी, लेकिन हमारा भी तो कोई हक बनता है ना अपनी बेटी पर। इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं जमाल से बात करूँ कि जैसे ही समन के पेपर्स ख़त्म हों, हम साथ ही उन दोनों की शादी की डेट फ़िक्स करके और समन को जल्दी ही रुखसत कर दें। फिर आगे वहाँ सानिया की बेटी की ख्वाहिश थी कि वो बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन ले लेकर लेकिन वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए फ़ीस की ज़रूरत थी। और लेकिन जब वो अज़रा से कहती है तो अज़रा से कहती है कि तुम फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें जहाँ एडमिशन लेना तो मुझे बताना, मैं तुम्हारा एडमिशन करवा दूँगी। भले से तुम्हारी माँ अच्छी औरत नहीं है, वो उसने कभी मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगी। तुम्हें जब मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। जिस पर सायरा की बेटी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो उनसे कहती है कि मुझे एक स्कूल में एडमिशन लेना है, लेकिन वहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ वहाँ पर चलें। अम्मी ने वहाँ जाने से साफ़ इनकार कर दिया। आप अगर आप मेरे साथ वहाँ जाएँगी तो हो सकता है कि मेरी फ़ीस भी थोड़ी बहुत कम कर दें। जब अज़रा उसके साथ वहाँ पर जाती है तो उसे वहाँ जाकर पता चलता है कि वहाँ पर जो बच्चे यतीम होते हैं उन्हें रिलीफ़ दिया जाता है और उन्हें 50% फ़ीस पर वहाँ पर एडमिशन मिल जाता है। जब ये बात सायरा की बेटी सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अज़रा उसे कहती है कि चलो 50% फ़ीस तो तुम्हारी मैं दे दूँगी। तुम एक काम करना, अपने सारे पेपर्स रेडी करवा लेना, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी और फिर हम तुम्हारा एडमिशन करवा लेंगे। ये बात सुनकर सायरा की बेटी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो उनसे कहती है कि आप बहुत अच्छी हैं, अम्मी ऐसे ही आपके बारे में उल्टा-सीधा बोलती रहती हैं। अज़रा उसे कहती है कि तुम्हारी माँ को तो वैसे ही गंदी आदत है हमेशा दूसरों के बारे में उल्टी-सीधी बातें करने की। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि समन के बाबा बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं समन की वजह से। वो सोचते हैं कि बस वो किसी तरह से जल्द अपनी बेटी का फ़र्ज़ अदा कर दें। वो समन की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वो अपनी बीवी के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में तुम दोनों का हिस्सा तुम लोगों को दे दूँ। जिस पर उनकी बीवी उनसे कहती है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, हमें कोई हिस्सा नहीं चाहिए और आप जब तक हमारे साथ हैं हमें हमारे लिए बस आपका साथ काफ़ी है। जिस पर समन का बाप उससे कहता है कि ऐसी बात नहीं है, बस मैं वैसे ही चाहता हूँ। मुझे असल में फ़रद के माँ-बाप का हादसा देखकर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, इसलिए मैं सोच रहा था कि हम जल्दी समन की शादी भी कर दें, उसे उसके फ़र्ज़ से भी आज़ाद हो जाएँ और फिर मैं चाहता था कि मैं अपनी ज़िंदगी में अपना हक तुम दोनों का हक तुम दोनों को दे दूँ, ताकि मेरे सर से सारा बोझ उतर जाए और मेरे बाद तुम दोनों को किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। जिस पर उनकी बीवी उन्हें समझाती है कि जो कुछ फ़रद के माँ-बाप के साथ हुआ है, ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता। वो उन दोनों की किस्मत में ऐसे ही मौत लिखी थी, इसलिए उनके साथ वो हादसा हो गया। हमें तो फ़रद के लिए भी बहुत अफ़सोस होता है कि वो बच्ची अब कैसे जिएगी। उसके दोनों माँ-बाप एक साथ उसे छोड़कर चले गए हैं। मैं समझ सकती हूँ इस बात का दुःख और मुझे पता है कि आपको भी इस बात की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कि आखिर आप ये सब कुछ कैसे करेंगे। लेकिन आप फ़िक्र ना करें, अज़रा ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, वो हमेशा हमारा साथ देगी और वो हमारे मामलात को बहुत अच्छे से समझती है और वो बहुत अच्छे से समझती है कि हम उसका कितना ख्याल रखते हैं और वो हमारी बेटी का भी बहुत ख्याल रखेगी। आप इस चीज़ से बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाएँ। वो उसका शौहर उनसे कहता है कि मुझे पता है कि अज़रा भाभी बहुत अच्छी हैं, वो हमारा बहुत ख्याल रखेंगी और हमारी बेटी का भी बहुत ख्याल रखेंगी, लेकिन हमारा भी तो कोई हक बनता है ना अपनी बेटी पर। इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं जमाल से बात करूँ कि जैसे ही समन के पेपर्स ख़त्म हों, हम साथ ही उन दोनों की शादी की डेट फ़िक्स करके और समन को जल्दी ही रुखसत कर दें। फिर आगे वहाँ सानिया की बेटी की ख्वाहिश थी कि वो बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन ले लेकर लेकिन वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए फ़ीस की ज़रूरत थी। और लेकिन जब वो अज़रा से कहती है तो अज़रा से कहती है कि तुम फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें जहाँ एडमिशन लेना तो मुझे बताना, मैं तुम्हारा एडमिशन करवा दूँगी। भले से तुम्हारी माँ अच्छी औरत नहीं है, वो उसने कभी मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगी। तुम्हें जब मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। जिस पर सायरा की बेटी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो उनसे कहती है कि मुझे एक स्कूल में एडमिशन लेना है, लेकिन वहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ वहाँ पर चलें। अम्मी ने वहाँ जाने से साफ़ इनकार कर दिया। आप अगर आप मेरे साथ वहाँ जाएँगी तो हो सकता है कि मेरी फ़ीस भी थोड़ी बहुत कम कर दें। जब अज़रा उसके साथ वहाँ पर जाती है तो उसे वहाँ जाकर पता चलता है कि वहाँ पर जो बच्चे यतीम होते हैं उन्हें रिलीफ़ दिया जाता है और उन्हें 50% फ़ीस पर वहाँ पर एडमिशन मिल जाता है। जब ये बात सायरा की बेटी सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अज़रा उसे कहती है कि चलो 50% फ़ीस तो तुम्हारी मैं दे दूँगी। तुम एक काम करना, अपने सारे पेपर्स रेडी करवा लेना, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी और फिर हम तुम्हारा एडमिशन करवा लेंगे।
ये बात सुनकर सायरा की बेटी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो उनसे कहती है कि आप बहुत अच्छी हैं, अम्मी ऐसे ही आपके बारे में उल्टा-सीधा बोलती रहती हैं। अज़रा उसे कहती है कि तुम्हारी माँ को तो वैसी गंदी आदत है हमेशा दूसरों के बारे में उल्टी-सीधी बातें करने की। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि समन के बाबा बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं समन की वज़ह से। वो सोचते हैं कि बस वो किसी तरह से जल्द अपनी बेटी का फ़र्ज़ अदा कर दें। वो समन की वज़ह से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वो अपनी बीवी के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में तुम दोनों का हिस्सा तुम लोगों को दे दूँ। जिस पर उनकी बीवी उनसे कहती है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, हमें कोई हिस्सा नहीं चाहिए और आप जब तक हमारे साथ हैं, हमें हमारे लिए बस आपका साथ काफ़ी है। जिस पर समन का बाप उससे कहता है कि ऐसी बात नहीं है, बस मैं वैसे ही चाहता हूँ। मुझे असल में फ़रहत के माँ-बाप का हादसा देखकर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, इसलिए मैं सोच रहा था कि हम जल्दी समन की शादी भी कर दें, उसे उसके फ़र्ज़ से भी आज़ाद हो जाएँ और फिर मैं चाहता था कि मैं अपनी ज़िंदगी में अपना हक तुम दोनों का हक तुम दोनों को दे दूँ ताकि मेरे सर से सारा बोझ उतर जाए और मेरे बाद तुम दोनों को किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। जिस पर उनकी बीवी उन्हें समझाती है कि जो कुछ फ़रहत के माँ-बाप के साथ हुआ है ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता। वो उन दोनों की किस्मत में ऐसे ही मौत लिखी थी इसलिए उनके साथ वो हादसा हो गया। हमें तो फ़रहत के लिए भी बहुत अफ़सोस होता है कि वो बच्ची अब कैसे जिएगी। उसके दोनों माँ-बाप एक साथ उसे तो छोड़कर चले गए हैं। मैं समझ सकती हूँ इस बात का दुःख और मुझे पता है कि आपको भी इस बात की वज़ह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कि आखिर आप ये सब कुछ कैसे करेंगे। लेकिन आप फ़िक्र ना करें, अज़रा ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, वो हमेशा हमारा साथ देगी और वो हमारे मामलात को बहुत अच्छे से समझती है और वो बहुत अच्छे से समझती है कि हम उसका कितना ख़्याल रखते हैं और वो हमारी बेटी का भी बहुत ख़्याल रखेगी। आप इस चीज़ से बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाएँ। वो उसका शौहर उनसे कहता है कि मुझे पता है कि अज़रा भाभी बहुत अच्छी हैं, वो हमारा बहुत ख़्याल रखेंगी और हमारी बेटी का भी बहुत ख़्याल रखेंगी, लेकिन हमारा भी तो कोई हक बनता है ना अपनी बेटी पर। इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं जमाल से बात करूँ कि जैसे ही समन के पेपर्स ख़त्म हो हम साथ ही उन दोनों की शादी की डेट फ़िक्स करके और समन को जल्दी ही रुखसत कर दें। फिर आगे वहाँ सानिया की बेटी की ख्वाहिश थी कि वो बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन ले लेकर लेकिन वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए फ़ीस की ज़रूरत थी। और लेकिन जब वो अज़रा से कहती है तो अज़रा से कहती है कि तुम फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें जहाँ एडमिशन लेना तो मुझे बताना, मैं तुम्हारा एडमिशन करवा दूँगी। भले से तुम्हारी माँ अच्छी औरत नहीं है, वो उसने कभी मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगी। तुम्हें जब मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। जिस पर सायरा की बेटी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो उनसे कहती है कि मुझे एक स्कूल में एडमिशन लेना है, लेकिन वहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ वहाँ पर चलें। अम्मी ने वहाँ जाने से साफ इनकार कर दिया। आप अगर आप मेरे साथ वहाँ जाएँगी तो हो सकता है कि मेरी फ़ीस भी थोड़ी बहुत कम कर दें। जब अज़रा उसके साथ वहाँ पर जाती है तो उसे वहाँ जाकर पता चलता है कि वहाँ पर जो बच्चे यतीम होते हैं उन्हें रिलीफ़ दिया जाता है और उन्हें 50% फ़ीस पर वहाँ पर एडमिशन मिल जाता है। जब ये बात सायरा की बेटी सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अज़रा उसे कहती है कि चलो 50% फ़ीस तो तुम्हारी मैं दे दूँगी। तुम एक काम करना, अपने सारे पेपर्स रेडी करवा लेना, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी और फिर हम तुम्हारा एडमिशन करवा लेंगे। ये बात सुनकर सायरा की बेटी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो उनसे कहती है कि आप बहुत अच्छी हैं, अम्मी ऐसे ही आपके बारे में उल्टा-सीधा बोलती रहती हैं। अज़रा उसे कहती है कि तुम्हारी माँ को तो वैसी गंदी आदत है हमेशा दूसरों के बारे में उल्टी-सीधी बातें करने की। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि समन के बाबा बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं समन की वज़ह से। वो सोचते हैं कि बस वो किसी तरह से जल्द अपनी बेटी का फ़र्ज़ अदा कर दें। वो समन की वज़ह से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वो अपनी बीवी के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में तुम दोनों का हिस्सा तुम लोगों को दे दूँ। जिस पर उनकी बीवी उनसे कहती है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, हमें कोई हिस्सा नहीं चाहिए और आप जब तक हमारे साथ हैं, हमें हमारे लिए बस आपका साथ काफ़ी है। जिस पर समन का बाप उससे कहता है कि ऐसी बात नहीं है, बस मैं वैसे ही चाहता हूँ। मुझे असल में फ़रहत के माँ-बाप का हादसा देखकर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, इसलिए मैं सोच रहा था कि हम जल्दी समन की शादी भी कर दें, उसके फ़र्ज़ से भी आज़ाद हो जाएँ और फिर मैं चाहता था कि मैं अपनी ज़िंदगी में अपना हक तुम दोनों का हक तुम दोनों को दे दूँ ताकि मेरे सर से सारा बोझ उतर जाए और मेरे बाद तुम दोनों को किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। जिस पर उनकी बीवी उन्हें समझाती है कि जो कुछ फ़रहत के माँ-बाप के साथ हुआ है ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता। वो उन दोनों की किस्मत में ऐसे ही मौत लिखी थी इसलिए उनके साथ वो हादसा हो गया। हमें तो फ़रहत के लिए भी बहुत अफ़सोस होता है कि वो बच्ची अब कैसे जिएगी। उसके दोनों माँ-बाप एक साथ उसे तो छोड़कर चले गए हैं। मैं समझ सकती हूँ इस बात का दुःख और मुझे पता है कि आपको भी इस बात की वज़ह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कि आखिर आप ये सब कुछ कैसे करेंगे। लेकिन आप फ़िक्र ना करें, अज़रा ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, वो हमेशा हमारा साथ देगी और वो हमारे मामलात को बहुत अच्छे से समझती है और वो बहुत अच्छे से समझती है कि हम उसका कितना ख़्याल रखते हैं और वो हमारी बेटी का भी बहुत ख़्याल रखेगी। आप इस चीज़ से बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाएँ। वो उसका शौहर उनसे कहता है कि मुझे पता है कि अज़रा भाभी बहुत अच्छी हैं, वो हमारा बहुत ख़्याल रखेंगी और हमारी बेटी का भी बहुत ख़्याल रखेंगी, लेकिन हमारा भी तो कोई हक बनता है ना अपनी बेटी पर। इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं जमाल से बात करूँ कि जैसे ही समन के पेपर्स ख़त्म हो हम साथ ही उन दोनों की शादी की डेट फ़िक्स करके और समन को जल्दी ही रुखसत कर दें। फिर आगे वहाँ सानिया की
बेटी की ख्वाहिश थी कि वो बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन लेकिन वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए फ़ीस की ज़रूरत थी। और लेकिन जब वो अज़रा से कहती है तो अज़रा से कहती है कि तुम फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें जहाँ एडमिशन लेना तो मुझे बताना, मैं तुम्हारा एडमिशन करवा दूँगी। भले से तुम्हारी माँ अच्छी औरत नहीं है, वो उसने कभी मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगी। तुम्हें जब मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। जिस पर सायरा की बेटी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो उनसे कहती है कि मुझे एक स्कूल में एडमिशन लेना है, लेकिन वहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ वहाँ पर चलें। अम्मी ने वहाँ जाने से साफ इनकार कर दिया। आप अगर अगर आप मेरे साथ वहाँ जाएँगी तो हो सकता है कि मेरी फ़ीस भी थोड़ी बहुत कम कर दें। जब अज़रा उसके साथ वहाँ पर जाती है तो उसे वहाँ जाकर पता चलता है कि वहाँ पर जो बच्चे यतीम होते हैं उन्हें रिलीफ़ दिया जाता है और उन्हें 50% फ़ीस पर वहाँ पर एडमिशन मिल जाता है। जब ये बात सायरा की बेटी सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अज़रा उसे कहती है कि चलो 50% फ़ीस तो तुम्हारी मैं दे दूँगी। तुम एक काम करना, अपने सारे पेपर्स रेडी करवा लेना, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी और फिर हम तुम्हारा एडमिशन करवा लेंगे। ये बात सुनकर सायरा की बेटी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो उनसे कहती है कि आप बहुत अच्छी हैं, अम्मी ऐसे ही आपके बारे में उल्टा-सीधा बोलती रहती हैं। अज़रा उसे कहती है कि तुम्हारी माँ को तो वैसी गंदी आदत है हमेशा दूसरों के बारे में उल्टी-सीधी बातें करने की। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि समन के बाबा बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं समन की वजह से। वो सोचते हैं कि बस वो किसी तरह से जल्द अपनी बेटी का फ़र्ज़ अदा कर दें। वो समन की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वो अपनी बीवी के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में तुम दोनों का हिस्सा तुम लोगों को दे दूँ। जिस पर उनकी बीवी उनसे कहती है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, हमें कोई हिस्सा नहीं चाहिए और आप जब तक हमारे साथ हैं, हमें हमारे लिए बस आपका साथ काफ़ी है। जिस पर समन का बाप उससे कहता है कि ऐसी बात नहीं है, बस मैं वैसे ही चाहता हूँ। मुझे असल में फ़रहत के माँ-बाप का हादसा देखकर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, इसलिए मैं सोच रहा था कि हम जल्दी समन की शादी भी कर दें, उसके फ़र्ज़ से भी आज़ाद हो जाएँ और फिर मैं चाहता था कि मैं अपनी ज़िंदगी में अपना हक तुम दोनों का हक तुम दोनों को दे दूँ, ताकि मेरे सर से सारा बोझ उतर जाए और मेरे बाद तुम दोनों को किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। जिस पर उनकी बीवी उन्हें समझाती है कि जो कुछ फ़रहत के माँ-बाप के साथ हुआ है, ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता। वो उन दोनों की किस्मत में ऐसे ही मौत लिखी थी, इसलिए उनके साथ वो हादसा हो गया। हमें तो फ़रहत के लिए भी बहुत अफ़सोस होता है कि वो बच्ची अब कैसे जिएगी। उसके दोनों माँ-बाप एक साथ उसे छोड़कर चले गए हैं। मैं समझ सकती हूँ इस बात का दुःख और मुझे पता है कि आपको भी इस बात की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कि आखिर आप ये सब कुछ कैसे करेंगे। लेकिन आप फ़िक्र ना करें, अज़रा ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, वो हमेशा हमारा साथ देगी और वो हमारे मामलात को बहुत अच्छे से समझती है और वो बहुत अच्छे से समझती है कि हम उसका कितना ख़्याल रखते हैं और वो हमारी बेटी का भी बहुत ख़्याल रखेगी। आप इस चीज़ से बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाएँ। वो उसका शौहर उनसे कहता है कि मुझे पता है कि अज़रा भाभी बहुत अच्छी हैं, वो हमारा बहुत ख़्याल रखेंगी और हमारी बेटी का भी बहुत ख़्याल रखेंगी, लेकिन हमारा भी तो कोई हक बनता है ना अपनी बेटी पर। इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं जमाल से बात करूँ कि जैसे ही समन के पेपर्स ख़त्म हो, हम साथ ही उन दोनों की शादी की डेट फ़िक्स करके और समन को जल्दी ही रुखसत कर दें। फिर आगे वहाँ सानिया की बेटी की ख्वाहिश थी कि वो बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन लेकिन वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए फ़ीस की ज़रूरत थी। और लेकिन जब वो अज़रा से कहती है तो अज़रा से कहती है कि तुम फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें जहाँ एडमिशन लेना तो मुझे बताना, मैं तुम्हारा एडमिशन करवा दूँगी। भले से तुम्हारी माँ अच्छी औरत नहीं है, वो उसने कभी मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगी। तुम्हें जब मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। जिस पर सायरा की बेटी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो उनसे कहती है कि मुझे एक स्कूल में एडमिशन लेना है, लेकिन वहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ वहाँ पर चलें। अम्मी ने वहाँ जाने से साफ इनकार कर दिया। अगर आप मेरे साथ वहाँ जाएँगी तो हो सकता है कि मेरी फ़ीस भी थोड़ी बहुत कम कर दें। जब अज़रा उसके साथ वहाँ पर जाती है तो उसे वहाँ जाकर पता चलता है कि वहाँ पर जो बच्चे यतीम होते हैं उन्हें रिलीफ़ दिया जाता है और उन्हें 50% फ़ीस पर वहाँ पर एडमिशन मिल जाता है। जब ये बात सायरा की बेटी सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अज़रा उसे कहती है कि चलो 50% फ़ीस तो तुम्हारी मैं दे दूँगी। तुम एक काम करना, अपने सारे पेपर्स रेडी करवा लेना, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी और फिर हम तुम्हारा एडमिशन करवा लेंगे। ये बात सुनकर सायरा की बेटी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो उनसे कहती है कि आप बहुत अच्छी हैं, अम्मी ऐसे ही आपके बारे में उल्टा-सीधा बोलती रहती हैं। अज़रा उसे कहती है कि तुम्हारी माँ को तो वैसी गंदी आदत है हमेशा दूसरों के बारे में उल्टी-सीधी बातें करने की। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि समन के बाबा बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं समन की वजह से। वो सोचते हैं कि बस वो किसी तरह से जल्द अपनी बेटी का फ़र्ज़ अदा कर दें। वो समन की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वो अपनी बीवी के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में तुम दोनों का हिस्सा तुम लोगों को दे दूँ। जिस पर
उनकी बीवी उनसे कहती है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, हमें कोई हिस्सा नहीं चाहिए और आप जब तक हमारे साथ हैं हमें हमारे लिए बस आपका साथ काफ़ी है। जिस पर समन का बाप उससे कहता है कि ऐसी बात नहीं है, बस मैं वैसे ही चाहता हूँ। मुझे असल में फ़रद के माँ-बाप का हादसा देखकर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, इसलिए मैं सोच रहा था कि हम जल्दी समन की शादी भी कर दें, उसे उसके फ़र्ज़ से भी आज़ाद हो जाएँ और फिर मैं चाहता था कि मैं अपनी ज़िंदगी में अपना हक़ तुम दोनों का हक़ तुम दोनों को दे दूँ ताकि मेरे सर से सारा बोझ उतर जाए और मेरे बाद तुम दोनों को किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। जिस पर उनकी बीवी उन्हें समझाती है कि जो कुछ फ़रद के माँ-बाप के साथ हुआ है ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता। वो उन दोनों की किस्मत में ऐसे ही मौत लिखी थी, इसलिए उनके साथ वो हादसा हो गया। हमें तो फ़रद के लिए भी बहुत अफ़सोस होता है कि वो बच्ची अब कैसे जिएगी, उसके दोनों माँ-बाप एक साथ उसे छोड़कर चले गए हैं। मैं समझ सकती हूँ इस बात का दुःख और मुझे पता है कि आपको भी इस बात की वज़ह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कि आखिर आप ये सब कुछ कैसे करेंगे। लेकिन आप फ़िक्र ना करें, अज़रा ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, वो हमेशा हमारा साथ देगी और वो हमारे मामलात को बहुत अच्छे से समझती है और वो बहुत अच्छे से समझती है कि हम उसका कितना ख़्याल रखते हैं और वो हमारी बेटी का भी बहुत ख़्याल रखेगी। आप इस चीज़ से बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाएँ। वो उसका शौहर उनसे कहता है कि मुझे पता है कि अज़रा भाभी बहुत अच्छी हैं, वो हमारा बहुत ख़्याल रखेंगी और हमारी बेटी का भी बहुत ख़्याल रखेंगी, लेकिन हमारा भी तो कोई हक़ बनता है ना अपनी बेटी पर। इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं जमाल से बात करूँ कि जैसे ही समन के पेपर्स ख़त्म हों, हम साथ ही उन दोनों की शादी की डेट फ़िक्स करके और समन को जल्दी ही रुखसत कर दें। फिर आगे वहाँ सानिया की बेटी की ख्वाहिश थी कि वो बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन ले लेकर लेकिन वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए फ़ीस की ज़रूरत थी। और लेकिन जब वो अज़रा से कहती है तो अज़रा से कहती है कि तुम फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें जहाँ एडमिशन लेना तो मुझे बताना, मैं तुम्हारा एडमिशन करवा दूँगी। भले से तुम्हारी माँ अच्छी औरत नहीं है, वो उसने कभी मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगी। तुम्हें जब मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। जिस पर सायरा की बेटी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो उनसे कहती है कि मुझे एक स्कूल में एडमिशन लेना है, लेकिन वहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ वहाँ पर चलें। अम्मी ने वहाँ जाने से साफ़ इनकार कर दिया। आप अगर आप मेरे साथ वहाँ जाएँगी तो हो सकता है कि मेरी फ़ीस भी थोड़ी बहुत कम कर दें। जब अज़रा उसके साथ वहाँ पर जाती है तो उसे वहाँ जाकर पता चलता है कि वहाँ पर जो बच्चे यतीम होते हैं उन्हें रिलीफ़ दिया जाता है और उन्हें 50% फ़ीस पर वहाँ पर एडमिशन मिल जाता है। जब ये बात सायरा की बेटी सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अज़रा उसे कहती है कि चलो 50% फ़ीस तो तुम्हारी मैं दे दूँगी। तुम एक काम करना, अपने सारे पेपर्स रेडी करवा लेना, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी और फिर हम तुम्हारा एडमिशन करवा लेंगे। ये बात सुनकर सायरा की बेटी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो उनसे कहती है कि आप बहुत अच्छी हैं, अम्मी ऐसे ही आपके बारे में उल्टा-सीधा बोलती रहती हैं। अज़रा उसे कहती है कि तुम्हारी माँ को तो वैसे ही गंदी आदत है हमेशा दूसरों के बारे में उल्टी-सीधी बातें करने की। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि समन के बाबा बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं समन की वज़ह से। वो सोचते हैं कि बस वो किसी तरह से जल्द अपनी बेटी का फ़र्ज़ अदा कर दें। वो समन की वज़ह से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वो अपनी बीवी के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में तुम दोनों का हिस्सा तुम लोगों को दे दूँ। जिस पर उनकी बीवी उनसे कहती है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, हमें कोई हिस्सा नहीं चाहिए और आप जब तक हमारे साथ हैं हमें हमारे लिए बस आपका साथ काफ़ी है। जिस पर समन का बाप उससे कहता है कि ऐसी बात नहीं है, बस मैं वैसे ही चाहता हूँ। मुझे असल में फ़रद के माँ-बाप का हादसा देखकर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, इसलिए मैं सोच रहा था कि हम जल्दी समन की शादी भी कर दें, उसे उसके फ़र्ज़ से भी आज़ाद हो जाएँ और फिर मैं चाहता था कि मैं अपनी ज़िंदगी में अपना हक़ तुम दोनों का हक़ तुम दोनों को दे दूँ ताकि मेरे सर से सारा बोझ उतर जाए और मेरे बाद तुम दोनों को किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। जिस पर उनकी बीवी उन्हें समझाती है कि जो कुछ फ़रद के माँ-बाप के साथ हुआ है ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता। वो उन दोनों की किस्मत में ऐसे ही मौत लिखी थी, इसलिए उनके साथ वो हादसा हो गया। हमें तो फ़रद के लिए भी बहुत अफ़सोस होता है कि वो बच्ची अब कैसे जिएगी, उसके दोनों माँ-बाप एक साथ उसे छोड़कर चले गए हैं। मैं समझ सकती हूँ इस बात का दुःख और मुझे पता है कि आपको भी इस बात की वज़ह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कि आखिर आप ये सब कुछ कैसे करेंगे। लेकिन आप फ़िक्र ना करें, अज़रा ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, वो हमेशा हमारा साथ देगी और वो हमारे मामलात को बहुत अच्छे से समझती है और वो बहुत अच्छे से समझती है कि हम उसका कितना ख़्याल रखते हैं और वो हमारी बेटी का भी बहुत ख़्याल रखेगी। आप इस चीज़ से बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाएँ। वो उसका शौहर उनसे कहता है कि मुझे पता है कि अज़रा भाभी बहुत अच्छी हैं, वो हमारा बहुत ख़्याल रखेंगी और हमारी बेटी का भी बहुत ख़्याल रखेंगी, लेकिन हमारा भी तो कोई हक़ बनता है ना अपनी बेटी पर। इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं जमाल से बात करूँ कि जैसे ही समन के पेपर्स ख़त्म हों, हम साथ ही उन दोनों की शादी की डेट फ़िक्स करके और समन को जल्दी ही रुखसत कर दें। फिर आगे वहाँ सानिया की बेटी की ख्वाहिश थी कि वो बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन ले लेकर लेकिन वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए फ़ीस की ज़रूरत थी। और लेकिन जब वो अज़रा से कहती है तो अज़रा से कहती है कि तुम फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें जहाँ एडमिशन लेना तो मुझे बताना, मैं तुम्हारा एडमिशन करवा दूँगी। भले से तुम्हारी माँ अच्छी औरत नहीं है, वो उसने कभी मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगी। तुम्हें जब मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। जिस पर सायरा की बेटी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो उनसे कहती है कि मुझे एक स्कूल में एडमिशन लेना है, लेकिन वहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ वहाँ पर चलें।
अम्मी ने वहाँ जाने से साफ इनकार कर दिया। अगर आप मेरे साथ वहाँ जाएंगी तो हो सकता है कि मेरी फीस भी थोड़ी बहुत कम कर दें। जब अज़रा उसके साथ वहाँ पर जाती है तो उसे वहाँ जाकर पता चलता है कि वहाँ पर जो बच्चे यतीम होते हैं उन्हें रिलीफ दिया जाता है और उन्हें 50% फीस पर वहाँ पर एडमिशन मिल जाता है। जब ये बात सायरा की बेटी सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अज़रा उसे कहती है कि चलो 50% फीस तो तुम्हारी मैं दे दूँगी, तुम एक काम करना, अपने सारे पेपर्स रेडी करवा लेना, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी और फिर हम तुम्हारा एडमिशन करवा लेंगे। ये बात सुनकर सायरा की बेटी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो उनसे कहती है कि आप बहुत अच्छी हैं, अम्मी ऐसे ही आपके बारे में उल्टा सीधा बोलती रहती हैं। अज़रा उसे कहती है कि तुम्हारी माँ को तो वैसी गंदी आदत है हमेशा दूसरों के बारे में उल्टी सीधी बातें करने की। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि समन के बाबा बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं समन की वजह से। वो सोचते हैं कि बस वो किसी तरह से जल्द अपनी बेटी का फ़र्ज़ अदा कर दें। वो समन की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वो अपनी बीवी के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में तुम दोनों का हिस्सा तुम लोगों को दे दूँ। जिस पर उनकी बीवी उनसे कहती है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, हमें कोई हिस्सा नहीं चाहिए और आप जब तक हमारे साथ हैं, हमें हमारे लिए बस आपका साथ काफ़ी है। जिस पर समन का बाप उससे कहता है कि ऐसी बात नहीं है, बस मैं वैसे ही चाहता हूँ। मुझे असल में फ़रद के माँ बाप का हादसा देखकर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, इसलिए मैं सोच रहा था कि हम जल्दी समन की शादी भी कर दें, उसे उसके फ़र्ज से भी आज़ाद हो जाएं और फिर मैं चाहता था कि मैं अपनी ज़िंदगी में अपना हक तुम दोनों का हक तुम दोनों को दे दूँ, ताकि मेरे सर से सारा बोझ उतर जाए और मेरे बाद तुम दोनों को किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। जिस पर उनकी बीवी उन्हें समझाती है कि जो कुछ फ़रद के माँ बाप के साथ हुआ है ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता। वो उन दोनों की किस्मत में ऐसे ही मौत लिखी थी, इसलिए उनके साथ वो हादसा हो गया। हमें तो फ़रद के लिए भी बहुत अफसोस होता है कि वो बच्ची अब कैसे जिएगी, उसके दोनों माँ बाप एक साथ उसे छोड़कर चले गए हैं। मैं समझ सकती हूँ इस बात का दुख और मुझे पता है कि आपको भी इस बात की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कि आखिर आप ये सब कुछ कैसे करेंगे। लेकिन आप फ़िक्र ना करें, अज़रा ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, वो हमेशा हमारा साथ देगी और वो हमारे मामलात को बहुत अच्छे से समझती है और वो बहुत अच्छे से समझती है कि हम उसका कितना ख्याल रखते हैं और वो हमारी बेटी का भी बहुत ख्याल रखेगी। आप इस चीज़ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। वो उसका शौहर उनसे कहता है कि मुझे पता है कि अज़रा भाभी बहुत अच्छी हैं, वो हमारा बहुत ख्याल रखेंगी और हमारी बेटी का भी बहुत ख्याल रखेंगी, लेकिन हमारा भी तो कोई हक बनता है ना अपनी बेटी पर। इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं जमाल से बात करूं कि जैसे ही समन के पेपर्स ख़त्म हो हम साथ ही उन दोनों की शादी की डेट फिक्स करके और समन को जल्दी ही रुखसत कर दें। फिर आगे वहाँ सानिया की बेटी की ख्वाहिश थी कि वो बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन लेकिन वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए फ़ीस की ज़रूरत थी। लेकिन जब वो अज़रा से कहती है तो अज़रा से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें जहाँ एडमिशन लेना तो मुझे बताना, मैं तुम्हारा एडमिशन करवा दूंगी। भले से तुम्हारी माँ अच्छी औरत नहीं है, वो उसने कभी मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। तुम्हें जब मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। जिस पर सायरा की बेटी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो उनसे कहती है कि मुझे एक स्कूल में एडमिशन लेना है, लेकिन वहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ वहाँ पर चलें। अम्मी ने वहाँ जाने से साफ इनकार कर दिया। अगर आप मेरे साथ वहाँ जाएंगी तो हो सकता है कि मेरी फ़ीस भी थोड़ी बहुत कम कर दें। जब अज़रा उसके साथ वहाँ पर जाती है तो उसे वहाँ जाकर पता चलता है कि वहाँ पर जो बच्चे यतीम होते हैं उन्हें रिलीफ दिया जाता है और उन्हें 50% फीस पर वहाँ पर एडमिशन मिल जाता है। जब ये बात सायरा की बेटी सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अज़रा उसे कहती है कि चलो 50% फीस तो तुम्हारी मैं दे दूँगी, तुम एक काम करना, अपने सारे पेपर्स रेडी करवा लेना, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी और फिर हम तुम्हारा एडमिशन करवा लेंगे। ये बात सुनकर सायरा की बेटी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो उनसे कहती है कि आप बहुत अच्छी हैं, अम्मी ऐसे ही आपके बारे में उल्टा सीधा बोलती रहती हैं। अज़रा उसे कहती है कि तुम्हारी माँ को तो वैसी गंदी आदत है हमेशा दूसरों के बारे में उल्टी सीधी बातें करने की। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि समन के बाबा बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं समन की वजह से। वो सोचते हैं कि बस वो किसी तरह से जल्द अपनी बेटी का फ़र्ज़ अदा कर दें। वो समन की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वो अपनी बीवी के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में तुम दोनों का हिस्सा तुम लोगों को दे दूँ। जिस पर उनकी बीवी उनसे कहती है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, हमें कोई हिस्सा नहीं चाहिए और आप जब तक हमारे साथ हैं, हमें हमारे लिए बस आपका साथ काफ़ी है। जिस पर समन का बाप उससे कहता है कि ऐसी बात नहीं है, बस मैं वैसे ही चाहता हूँ। मुझे असल में फ़रद के माँ बाप का हादसा देखकर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, इसलिए मैं सोच रहा था कि हम जल्दी समन की शादी भी कर दें, उसके फ़र्ज से भी आज़ाद हो जाएं और फिर मैं चाहता था कि मैं अपनी ज़िंदगी में अपना हक तुम दोनों को दे दूँ, ताकि मेरे सर से सारा बोझ उतर जाए और मेरे बाद तुम दोनों को किसी किस्म की कोई परेशानी
परेशानी का सामना ना करना पड़े। जिस पर उनकी बीवी उन्हें समझाती है कि जो कुछ फ़रहत के माँ-बाप के साथ हुआ है, ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता। वो उन दोनों की किस्मत में ऐसे ही मौत लिखी थी, इसलिए उनके साथ वो हादसा हो गया। हमें तो फ़रहत के लिए भी बहुत अफ़सोस होता है कि वो बच्ची अब कैसे जिएगी। उसके दोनों माँ-बाप एक साथ उसे तो छोड़कर चले गए हैं। मैं समझ सकती हूँ इस बात का दुःख, और मुझे पता है कि आपको भी इस बात की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कि आखिर आप ये सब कुछ कैसे करेंगे। लेकिन आप फ़िक्र ना करें, अज़रा ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। वो हमेशा हमारा साथ देगी और वो हमारे मामलात को बहुत अच्छे से समझती है, और वो बहुत अच्छे से समझती है कि हम उसका कितना ख़्याल रखते हैं, और वो हमारी बेटी का भी बहुत ख़्याल रखेगी। आप इस चीज़ से बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाएँ। वो उसका शौहर उनसे कहता है कि मुझे पता है कि अज़रा भाभी बहुत अच्छी हैं, वो हमारा बहुत ख़्याल रखेंगी और हमारी बेटी का भी बहुत ख़्याल रखेंगी, लेकिन हमारा भी तो कोई हक़ बनता है ना अपनी बेटी पर। इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं जमाल से बात करूँ कि जैसे ही समन के पेपर्स ख़त्म हों, हम साथ ही उन दोनों की शादी की डेट फ़िक्स करके और समन को जल्दी ही रुखसत कर दें। फिर आगे वहाँ सानिया की बेटी की ख्वाहिश थी कि वो बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन ले लेकिन वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए फ़ीस की ज़रूरत थी। और लेकिन जब वो अज़रा से कहती है, तो अज़रा से कहती है कि तुम फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें जहाँ एडमिशन लेना तो मुझे बताना, मैं तुम्हारा एडमिशन करवा दूँगी। भले से तुम्हारी माँ अच्छी औरत नहीं है, वो उसने कभी मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगी। तुम्हें जब मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। जिस पर सायरा की बेटी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो उनसे कहती है कि मुझे एक स्कूल में एडमिशन लेना है, लेकिन वहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ वहाँ पर चलें। अम्मी ने वहाँ जाने से साफ़ इनकार कर दिया। आप अगर आप मेरे साथ वहाँ जाएँगी, तो हो सकता है कि मेरी फ़ीस भी थोड़ी बहुत कम कर दें। जब अज़रा उसके साथ वहाँ पर जाती है, तो उसे वहाँ जाकर पता चलता है कि वहाँ पर जो बच्चे यतीम होते हैं, उन्हें रिलीफ़ दिया जाता है और उन्हें 50% फ़ीस पर वहाँ पर एडमिशन मिल जाता है। जब ये बात सायरा की बेटी सुनती है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अज़रा उसे कहती है कि चलो 50% फ़ीस तो तुम्हारी मैं दे दूँगी। तुम एक काम करना, अपने सारे पेपर्स रेडी करवा लेना, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी और फिर हम तुम्हारा एडमिशन करवा लेंगे। ये बात सुनकर सायरा की बेटी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो उनसे कहती है कि आप बहुत अच्छी हैं, अम्मी ऐसे ही आपके बारे में उल्टा-सीधा बोलती रहती हैं। अज़रा उसे कहती है कि तुम्हारी माँ को तो वैसी गंदी आदत है हमेशा दूसरों के बारे में उल्टी-सीधी बातें करने की। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि समन के बाबा बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं समन की वजह से। वो सोचते हैं कि बस वो किसी तरह से जल्द अपनी बेटी का फ़र्ज़ अदा कर दें। वो समन की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वो अपनी बीवी के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में तुम दोनों का हिस्सा तुम लोगों को दे दूँ। जिस पर उनकी बीवी उनसे कहती है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, हमें कोई हिस्सा नहीं चाहिए, और आप जब तक हमारे साथ हैं, हमारे लिए बस आपका साथ काफ़ी है। जिस पर समन का बाप उससे कहता है कि ऐसी बात नहीं है, बस मैं वैसे ही चाहता हूँ। मुझे असल में फ़रहत के माँ-बाप का हादसा देखकर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, इसलिए मैं सोच रहा था कि हम जल्दी समन की शादी भी कर दें, उसके फ़र्ज़ से भी आज़ाद हो जाएँ, और फिर मैं चाहता था कि मैं अपनी ज़िंदगी में अपना हक़ तुम दोनों का हक़ तुम दोनों को दे दूँ, ताकि मेरे सर से सारा बोझ उतर जाए और मेरे बाद तुम दोनों को किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। जिस पर उनकी बीवी उन्हें समझाती है कि जो कुछ फ़रहत के माँ-बाप के साथ हुआ है, ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता। वो उन दोनों की किस्मत में ऐसे ही मौत लिखी थी, इसलिए उनके साथ वो हादसा हो गया। हमें तो फ़रहत के लिए भी बहुत अफ़सोस होता है कि वो बच्ची अब कैसे जिएगी। उसके दोनों माँ-बाप एक साथ उसे तो छोड़कर चले गए हैं। मैं समझ सकती हूँ इस बात का दुःख, और मुझे पता है कि आपको भी इस बात की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कि आखिर आप ये सब कुछ कैसे करेंगे। लेकिन आप फ़िक्र ना करें, अज़रा ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। वो हमेशा हमारा साथ देगी और वो हमारे मामलात को बहुत अच्छे से समझती है, और वो बहुत अच्छे से समझती है कि हम उसका कितना ख़्याल रखते हैं, और वो हमारी बेटी का भी बहुत ख़्याल रखेगी। आप इस चीज़ से बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाएँ। वो उसका शौहर उनसे कहता है कि मुझे पता है कि अज़रा भाभी बहुत अच्छी हैं, वो हमारा बहुत ख़्याल रखेंगी और हमारी बेटी का भी बहुत ख़्याल रखेंगी, लेकिन हमारा भी तो कोई हक़ बनता है ना अपनी बेटी पर। इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं जमाल से बात करूँ कि जैसे ही समन के पेपर्स ख़त्म हों, हम साथ ही उन दोनों की शादी की डेट फ़िक्स करके और समन को जल्दी ही रुखसत कर दें। फिर आगे वहाँ सानिया की बेटी की ख्वाहिश थी कि वो बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन लेकिन वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए फ़ीस की ज़रूरत थी। और लेकिन जब वो अज़रा से कहती है, तो अज़रा से कहती है कि तुम फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें जहाँ एडमिशन लेना तो मुझे बताना, मैं तुम्हारा एडमिशन करवा दूँगी। भले से तुम्हारी माँ अच्छी औरत नहीं है, वो उसने कभी मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगी। तुम्हें जब मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। जिस पर सायरा की बेटी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो उनसे कहती है कि मुझे एक स्कूल में एडमिशन लेना है, लेकिन वहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ वहाँ पर चलें। अम्मी ने वहाँ जाने से साफ़ इनकार कर दिया। अगर आप मेरे साथ वहाँ जाएँगी, तो हो सकता है कि मेरी फ़ीस भी थोड़ी बहुत कम कर दें। जब अज़रा उसके साथ वहाँ पर जाती है, तो उसे वहाँ जाकर पता चलता है कि वहाँ पर जो बच्चे यतीम होते हैं, उन्हें रिलीफ़ दिया जाता है और उन्हें 50% फ़ीस पर वहाँ पर एडमिशन मिल जाता है। जब ये बात सायरा की बेटी सुनती है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अज़रा उसे कहती है कि चलो 50% फ़ीस तो तुम्हारी मैं दे दूँगी। तुम एक काम करना, अपने सारे पेपर्स रेडी करवा लेना, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी और फिर हम तुम्हारा एडमिशन करवा
संभालेंगे। ये बात सुनकर सायरा की बेटी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो उनसे कहती है कि आप बहुत अच्छी हैं, अम्मी ऐसे ही आपके बारे में उल्टा-सीधा बोलती रहती हैं। अज़रा उसे कहती है कि तुम्हारी माँ को तो वैसी गंदी आदत है हमेशा दूसरों के बारे में उल्टी-सीधी बातें करने की। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि समन के बाबा बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं समन की वजह से। वो सोचते हैं कि बस वो किसी तरह से जल्द अपनी बेटी का फ़र्ज़ अदा कर दें। वो समन की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वो अपनी बीवी के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में तुम दोनों का हिस्सा तुम लोगों को दे दूँ। जिस पर उनकी बीवी उनसे कहती है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, हमें कोई हिस्सा नहीं चाहिए और आप जब तक हमारे साथ हैं हमें हमारे लिए बस आपका साथ काफ़ी है। जिस पर समन का बाप उससे कहता है कि ऐसी बात नहीं है, बस मैं वैसे ही चाहता हूँ। मुझे असल में फ़रद के माँ बाप का हादसा देखकर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, इसलिए मैं सोच रहा था कि हम जल्दी समन की शादी भी कर दें, उसे उसके फ़र्ज से भी आज़ाद हो जाएं। और फिर मैं चाहता था कि मैं अपनी ज़िंदगी में अपना हक तुम दोनों का हक तुम दोनों को दे दूँ, ताकि मेरे सर से सारा बोझ उतर जाए और मेरे बाद तुम दोनों को किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। जिस पर उनकी बीवी उन्हें समझाती है कि जो कुछ फ़रद के माँ बाप के साथ हुआ है ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता। वो उन दोनों की किस्मत में ऐसे ही मौत लिखी थी, इसलिए उनके साथ वो हादसा हो गया। हमें तो फ़रद के लिए भी बहुत अफसोस होता है कि वो बच्ची अब कैसे जिएगी। उसके दोनों माँ बाप एक साथ उसे छोड़कर चले गए हैं। मैं समझ सकती हूँ इस बात का दुख, और मुझे पता है कि आपको भी इस बात की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कि आखिर आप ये सब कुछ कैसे करेंगे। लेकिन आप फ़िक्र ना करें, अज़रा ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। वो हमेशा हमारा साथ देगी और वो हमारे मामलात को बहुत अच्छे से समझती है, और वो बहुत अच्छे से समझती है कि हम उसका कितना ख़्याल रखते हैं, और वो हमारी बेटी का भी बहुत ख़्याल रखेगी। आप इस चीज़ से बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाएँ। वो उसका शौहर उनसे कहता है कि मुझे पता है कि अज़रा भाभी बहुत अच्छी हैं, वो हमारा बहुत ख़्याल रखेंगी और हमारी बेटी का भी बहुत ख़्याल रखेंगी, लेकिन हमारा भी तो कोई हक बनता है ना अपनी बेटी पर। इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं जमाल से बात करूँ कि जैसे ही समन के पेपर्स ख़त्म हो, हम साथ ही उन दोनों की शादी की डेट फ़िक्स करके और समन को जल्दी ही रुखसत कर दें। फिर आगे वहाँ सानिया की बेटी की ख्वाहिश